Hello, dear students. In the series of congenital anomalies, today we will discuss about neural tube defects. Neural tube defects, in short, we can say NTDs. NTDs are basically disorders or congenital anomalies of CNS, which are due to non-closure of neural tube. We can say the severe birth defects of CNS, which results during embryonic development because of a failure of neural tube closure. They are known as neural tube defects. In simple words, we can say that congenital anomalies which involve CNS covering are called neural tube defects. They are most commonest CNS congenital anomalies, and the common entities are spina bifida occulta, meningocele, anencephaly, and encephalocele. About disease burden, the prevalence, they are commonest preventable severe congenital anomaly which can cause stillbirth, neonatal or infant death, or significant lifelong handicaps. Major health burden, with a prevalence of around 0.5 to 2 per thousand pregnancies worldwide. In India, the prevalence is much higher. In a recent review published in 2015 uh, or 16, it was 4.1 per thousand at birth. The prevalence was as high as 4.1, and among them the most commonest in India was anencephaly with a prevalence of 2.1 per thousand births, followed by spina bifida with 1.9 per thousand births. In etiology we have discussed in basics of congenital anomalies as well. The basic etiology regarding all the congenital anomalies are the complex interplay between genetic and environmental factors. Here, genetic factors, the consanguinity was suggested to contribute to the high incidence of NTDs. Where the consanguineous marriages occur, the incidence of NTDs are high. And behind the genetic cause, anencephaly is more prevalent among females. It also indicates that there is some genetic cause behind anencephaly or all these entities. There have been extensive research regarding genetic causes of entities, and a few genes have been isolated particularly for entities. And one of the commonest gene is मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो फॉलिक एसिड की कमी के कारण वहीं से क्लू मिला कि फॉलिक एसिड जिन महिलाओं को दिया जाता है उनमें जो एंटीडीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेसिफिकली स्पाइना बाइफिडा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वहाँ से रिसर्च देखी गई कि फॉलिक एसिड कैसे काम करता है। तो उस पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसकी म्यूटेशन हो जाए तो एंटिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जीन जो है MTHFR है। दूसरा एक PCP जीन होता है जिसको प्लानर सेल पोलैरिटी जीन बोलते हैं। ये भी एक जो है जीन रिस्पॉन्सिबल देखा गया एंटिटीज़ के लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं एटियोलॉजी में, तो टेराटोजेंस, कुछ वेल डिफाइंड टेराटोजेंस हैं, जैसे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स में वाल्प्रोइक एसिड एक वेल डिफाइंड है स्पाइना बाइफिडा के लिए। और एक फ्यूमिनोसिन एक फंगल प्रोडक्ट है। ये भी जो है अगर प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में मदर यूज़ कर रही है तो इट कैन एक्ट एज अ टेराटोजन एंड कॉज स्पाइना बाइफिडा। दैन मैटरनल, कुछ मैटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं स्पेसिफिकली फॉर वेरियस एंटिटीज़। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में यूजली CRS के चांसेस हाई देखे जाते हैं, कॉर्टियल रिग्रेशन सिंड्रोम के। देन ओबीज महिलाओं में भी एंटिटीज़ के रेट ज़्यादा देखे गए हैं। एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज़ आल्सो अ वेल नोन फैक्टर फॉर कॉजिंग एंटिटीज़। न्यूट्रिशनल फैक्टर सब जानते हैं जो कि सबसे मेन है प्रिवेंटेबल, इसीलिए जो एंटिटीज़ हो सकती हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो पेरिकंसेप्शनल फॉलिक एसिड दिया जाता है, दैट कैन प्रिवेंट एज हाई एज 60 to 70% ऑफ द एंटिटीज़। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ऑल द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स रिजल्ट ड्यू टू नॉन क्लोजर ऑफ द पार्ट्स ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मोस्टली इस टाइम जो बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि दे आर प्रेग्नेंट। तो थर्ड एंड फोर्थ
वीक में जो प्राइमरी न्यूरोलेशन और सेकेंडरी न्यूरोलेशन होती है, जब क्लोजर हो रहा होता है न्यूरल ट्यूब का, उस टाइम अगर न्यूरल ट्यूब क्लोजर नहीं हो पाया तो जो है इस तरह के डिफेक्ट होते हैं. द न्यूरल ट्यूब इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस दैट शेप बेंड एंड फ्यूज द न्यूरल प्लेट. न्यूरल प्लेट जो बनती है उसकी बेंडिंग से न्यूरल ट्यूब बनती है, एंड फ्यूजन इन द डॉर्सल मिड लाइन प्रोग्रेसिवली सील्स द न्यूरल ट्यूब एज इट फॉर्म्स. तो एक मिड पॉइंट होता है सर्वाइकल के आसपास जो है, जहाँ से न्यूरल ट्यूब बंद होना शुरू करती है और रोस्टरली एंड कॉर्डली दोनों तरफ प्रोग्रेस करता है इसका क्लोजर. और अगर उस टाइम कोई प्रॉब्लम टेराटोजन आता है या कोई इस तरह की होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है तो उस टाइम जो है क्लोजर में प्रॉब्लम आएगी, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं. और इफ़ द क्लोजर इज़ नॉट कम्प्लीटेड द न्यूरोएपिथेलियम रिमेन्स एक्सपोज टू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में, इन्वायरमेंट क्या है उसका, एमनियोटिक फ्लूइड और जो एमनियोटिक कैविटी है उसके एक्सपोजर में न्यूरोएपिथेलियम रहती है, जिस कारण से सब्सिक्वेंटली इट गेट जनरेटेड एंड देयर इज़ न्यूरोनल डेफिसिट. जैसे एनान्सेफली में ब्रेन बना ही नहीं या डिजनरेट हो गया. द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ दीज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वेरी विद द लेवल ऑफ बॉडी एक्सिस अफेक्टेड. कि कौन सा टाइप होगा, कि स्पाइना बाइफिडा होगा या एनान्सेफली होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइड में जो है न्यूरल ट्यूब ओपन रह गई है. दस फेलियर ऑफ क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टिव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिजल्ट्स इन एनान्सेफली एंड ओपन स्पाइना बाइफिडा. जो एमएमसी होती है वो हो सकता है. So this is the process by which various entities can occur. On the 18th day post fertilization, we can see that there is starting of the neural tube closure, site of closure initiation on the 18th day of post fertilization. और इसी में अगर स्टार्ट ही नहीं हो पाया न्यूरल ट्यूब का क्लोजर, इट कैन रिजल्ट इन क्रेनियोरेकाइसिस, जो कि बहुत रेयर होता है, बट इसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है ओपन रहता है. देन 24th डे जो है जो होता है उसमें आपके क्रेनियल और न्यूरल फोल्ड्स और स्पाइनल न्यूरल फोल्ड्स क्लोज कर जाते हैं, और अगर ये ओपन रह जाते हैं तो क्रेनियल के कारण एनेन्सेफली और स्पाइनल के कारण ओपन स्पाइना बाइफिडा. तो ये दोनों प्रोसेसेस जहाँ स्टार्ट होती है न्यूरोलेशन और कंप्लीट क्लोजर हो जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूरोलेशन डिफेक्ट्स. देन देर आर सेकेंडरी न्यूरोलेशन डिफेक्ट्स जो कि 35th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिखा है, और इसमें जो है बीरे स्पाइनल डिसरेफिज्म विद लाइपोमा वगैरह जो है हो सकते हैं. और इसके बाद जो है पोस्ट न्यूरोलेशन कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, 4th मंथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि एंसेफलोसील रिजल्ट हो सकती है. तो ये न्यूरल ट्यूब कैसे फॉर्म हो रही है और कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं वो दिखाया गया 21 डेज़ पे. बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो है फ्यूज़ किया अभी न्यूरल ट्यूब का. दैन 22nd में बहुत ज़्यादा हो गया और 28 पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट कहीं कहीं अगर पोर बचे हैं तो वो डिफेक्ट बनेंगे. देन देर आर सम टर्मिनोलॉजीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज़. तो टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिसरेफिज्म, बेसिकली वी से डिसरेफिज्म. एंड डिसरेफिज्म क्या है, इट इज़ परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूटी बिटवीन पोस्टीरियर न्यूरल एक्टोडर्म एंड क्यूटेनियस एक्टोडर्म. कि डिसरेफिज्म किस चीज़ को बोलेंगे, जो पोस्टीरियरली जो न्यूरल एक्टोडर्म प्लेस्ड है जिससे सीएनएस डेवलप करेगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी रहती है क्यूटेनियस एक्टोडर्म के साथ. मतलब बीच में जो मेजोडर्म आनी थी वो मेजोडर्म आई नहीं, इस कारण से जो है वो कंटिन्यू रही एक्टोडर्म के साथ. Then this dysraphism can be of two type: cranial dysraphism, where there is failure of closure of cranial neural tube, which results in anencephaly and encephalocele, while spinal dysraphism results due to failure of caudal neuropore, and this results in spina bifida cystica, which manifest as MMC or meningocele, and spina bifida occulta, जो कि आगे हम बात करेंगे. तो स्पाइनल डिसरेफिज्म के आगे क्लासिफिकेशन बात करें तो देर आर ओपन स्पाइनल डिसरेफिज्म एंड क्लोज स्पाइनल डिसरेफिज्म. इन ओपन स्पाइनल डिसरेफिज्म देर इज़ नो स्किन कवरिंग द मास ओवर पोस्टीरियर मिडलाइन. जो पोस्टीरियर मिडलाइन पे एक मास रहेगा जिसको स्किन कवर नहीं करेगी, देन इट इज़ ओपन स्पाइनल डिसरेफिज्म. और इस कैटेगरी में हमारे पास चार चीज़ें हो सकती हैं: माइलोमेनिंगोसील या प्लेन माइलोसील विदाउट मेनिंजेस, हेमी माइलोमेनिंगोसील जिसमें सिर्फ यूनिलेटरल, बाइलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल वर्टिब्रल आर्क जो है नहीं बनी है, जिस कारण से यूनिलेटरल हर्निएशन ऑफ
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल जो नर्वस टिश्यू है, और मेनिंजिस है, एंड एक हेमीमाइलोसिल हो सकती है। देन क्लोज्ड स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म में क्या रहेगा, देयर में भी टू कैटेगरीज विद सबक्यूटेनियस मास। अब यहाँ टर्म यूज हुई है सबक्यूटेनियस मास, मतलब स्किन ऊपर से है। तो आइदर क्लोज स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म में देयर आर टू कंडीशन, वन इज विद सबक्यूटेनियस मास, अदर वन इज विदाउट मास। इन विद सबक्यूटेनियस मास में जो है दो तीन चीज़ें कॉमन आती है, एक तो मेनिंगोसील हो गई, एक लाइपोमा के साथ जो है मेनिंगोसील, लाइपोमेनिंगोसील, लाइपोमाइलोसील हो सकती है, या टर्मिनल माइलोसिस्टोसील हो सकती है। विदाउट मास, जहाँ मास है ही नहीं, जैसे राइट में अपर पिक्चर दिखा रही है, लाइपोमा के साथ लाइपो मेनिंगोसील है। देन विदाउट मास की बात करें तो विदाउट मास में भी आगे फर्दर डिफरेंशिएशन है कि कॉम्प्लेक्स है या सिंपलर है। तो कॉम्प्लेक्स में जो है दो तरह से है, डिसऑर्डर ऑफ नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, कि स्पाइनल कॉर्ड बनी नहीं है या स्पाइनल कॉर्ड बनने में प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें दो दो कैटेगरीज फर्दर होती है कि कॉर्डल एजेनेसिस की लोअर पार्ट जो है नहीं बना है, जैसे सी और डी की इमेजेस जो एमआरआई इमेजेस लगी है राइट साइड नीचे वाली इमेज, तो उसमें देख सकते हैं कि कॉर्डल पार्ट जो एरो भी दिखाया है कि इसके नीचे की पार्ट की स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनी है। यूजली कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, सीआरएस, जो कि डायबिटिक मदर्स में देखा जाता है कि उनके बच्चों में सैक्रम और सैक्रल पार्ट की जितनी स्पाइनल कॉर्ड बननी थी वो नहीं बन पाई, जिस कारण से लोअर लिम्ब की वीकनेस और बॉवल ब्लैडर की डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो कॉर्डल एजेंसिस हो गया एक डिसऑर्डर ऑफ नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, बाहर से सब कुछ देखने में सही लगेगा बट अंदर प्रॉब्लम रहेगी, दैट इज़ क्लोज्ड स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म विदाउट मास। और दूसरा हो सकता है सेगमेंटल स्पाइनल डिस्जेंसिस की कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट, जैसे T3 T4 इन्वॉल्व हो गया, कि उतने उस पर्टिकुलर पार्ट की इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है उस पर्टिकुलर पार्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। देन देर आर डिसऑर्डर्स ऑफ नोटोकॉर्ड इंटीग्रेशन, एक नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन था, एक इंटीग्रेशन है कि नोटोकॉर्ड इंटीग्रेट नहीं हो पाई, तो उसमें बेसिकली फिस्चुलास या डायस्टेमेटोमेलिया जो है आएगा। डायस्टेमेटोमेलिया जो लेफ़्ट साइड की पिक्चर है, एरो दिखाया है कि वर्टिब्रल बॉडी से एक जो है प्रोसेस, एक ऑसियस प्रोसेस पीछे गई है, जिसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट में डाई स्टेमेटोमेलिया हो गया है। Then there are closed spinal dysraphism without mass, which are simple. They were complex. We have discussed about complex. Now simple. In simple, there is some indicators over skin of spinal dysraphism, like tuft of hair या इस तरीके के होंगे, और अंदर जो है उनमें प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरीके की रह सकती हैं, जैसे इंट्राड्यूरल और इंट्रामेडुलर लाइपोमा हो सकता है, फाइलर लाइपोमा, या टाइट फाइलम टर्मिनल डर्मल साइनस हो सकता है, या परसिस्टेंट टर्मिनल वेंट्रिकल्स। तो बाहर से जो है विदाउट मास होंगे, और अंदर जो है सिंपल स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म, जिसमें क्लोज्ड और ओपन, और क्लोज्ड में भी सबक्यूटेनियस मास के साथ, बिना सबक्यूटेनियस मास के, बिना सबक्यूटेनियस मास में कॉम्प्लेक्स और सिंपल वन। अब एक एक की बात करें तो माइलोमेनिंगोसील, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट this spinal dysraphism, which constitutes about 95% of the overt spinal dysraphism. मोस्ट सीवियर एंड कॉम्प्लेक्स जो जिसको बोलेंगे congenital anomaly न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, द कॉमनेस्ट साइट इज लंबर एंड लंबोसेक्रल, and it is usually associated with various comorbidities और कॉमन CNS anomalies जो congenital होती हैं उसके साथ, चेरी मालफॉर्मेशन और टाइप 2 और हाइड्रोसेफेलस, जो 80 to 90% of the MMC are associated with these two congenital anomalies। अदर जो congenital anomalies associated रहती है, सारेंजोमेलिया है, या ब्रेन स्टेम मालफॉर्मेशन है, हिटरोटोपियास हैं, पॉलीमाइक्रोगायरिया है, जेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम है, या सीएनएस के बाहर की कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे नीचे पिक्चर लगाई है CTEV की, या DDH जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप है, तो ये भी जो MMC के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एट बर्थ हम जैसे देखते हैं, और सैक्स लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज ऑफन रप्चर्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक।
तो राइट साइड की इमेज में अभी रप्चर नहीं हुआ है और लेफ्ट साइड की इमेज में जो है रप्चर हो गया ऐसा है और CSF लीक कर रहा है। द arachnoid सराउंडिंग स्किन इज ऑफन एंजियोमेटस। राइट साइड में देख सकते हैं हम कि कैसे एंजियोमेटस हो गई है, arachnoid वेसल्स खूब सारी दिख रही हैं उसमें। देर आर फीचर्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ इन्वॉल्व स्पाइनल सेगमेंट। जो भी स्पाइनल सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व हुआ है, लंबर हुआ है, सेक्रल हुआ है, थोरेसिक हुआ है, जहाँ की भी MMC है उसकी उसकी जो डेफिसिट्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली लंबर या लंबोसेक्रल इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें लोअर लिम्ब की वीकनेस होती है, ब्लैडर और बॉबल के डिसफंक्शन जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर ब्लैडर जो है ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होता है, ओवरफ्लो हो सकता है, और बॉबल में कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसके स्पिंक्टर कंट्रोल नहीं होगा जब वो नर्व्स जो हैं नहीं बनेंगी। तो देन सेंसरी लॉस हो सकता है लोअर लिम्स का। अगर सेंसरी लॉस होगा तो ट्रॉपिक अल्सर्स भी जो ऐसे बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म फीचर्स की बात करें तो डिसेबिलिटीज़ यूजुअली लोअर लिम्ब की वीकनेस के कारण, पैरालिसिस के कारण जो है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ उनमें देखने को मिल सकती हैं, और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अगर हाइड्रोसेफेलस टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इंटेलिजेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो मेन प्रॉब्लम्स इनमें आती है या आगे डेथ का कारण बनती है वो होती है जेनेटो यूरिनरी या GIT की एनॉमलीज या GIT की प्रॉब्लम्स। तो जेनेटो यूरिनरी में मेनली जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण लेट स्टेज में हाइड्रोनेफ्रोसिस और क्रोनिक रेनल फेलियर में ऐसे बच्चे CKD में जाते हैं। वेसिकुलर रिफ्लक्स और ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती है जिसके लिए उनको विजिलेंट रहना पड़ता है ऐसे बच्चों की सर्जरी के बाद भी। तो कॉम्प्लिकेशन में ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि हाइड्रोसेफेलस होता है कॉम्प्लिकेशन में, या ब्लैडर डिसफंक्शन के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस और रेनल फेलियर हो सकता है। और ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेट कर भी दिया जाता है तो देर में भी थर्ड कॉर हाइड्रोमेलिया और सारेंजोमेलिया जैसे कि लेफ्ट में पिक्चर दिखाई गई है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली आती हैं। मल्टीपल टाइम जो है ऑपरेट कई बच्चों में करना पड़ सकता है। देन सेकंड जो स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म की बात करें, सेकंड जो कॉमन देखने को मिलता है वो मेनिंगोसील है। और मेनिंगोसील रिजल्ट्स फ्रॉम द हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस थ्रू द बोनी डिफेक्ट दैट इज स्पाइना बाइफिडा विदाउट एन एसोसिएटेड हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स इनटू द ड्यूरल सैक। कि इसमें जो है जो ड्यूरल सैक बना रहता है स्किन के नीचे, इसमें सिर्फ मेनिंजेस होंगी, इसमें कोई स्पाइनल टिश्यू या नर्व्स नहीं होंगे। एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे तो इट विल बी अ फ्लूइड फिल्ड फ्लक्चुएंट मिड लाइन स्वेलिंग, मिड लाइन में होगी और फ्लक्चुएंट होगी, एंड इट विल आल्सो बी ट्रांस इल्यूमिनेंट बिकॉज इसमें स्पाइनल टिश्यू नहीं होगा तो फ्लूइड रहेगा तो ट्रांस इल्यूमिनेंट होगी। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रेयरली होता है अगर जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद सम इनर प्रॉब्लम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लाइक टेथर्ड कॉर्ड और सरेंजोमेलिया। अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऐसे बच्चों में जिसमें मेनिंगोसील है सिर्फ, उनमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता है। देन स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। तो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में इट इज़ कॉमन, जो एक स्टडी में हमने इंसिडेंस देखा तो इट कैन अफेक्ट इवन अप टू 5% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 100 में 5 लोगों में स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। तो दो टर्म्स यूज होती थी पहले, स्पाइना बाइफिडा एपेरेटा एंड स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। एपेरेटा मतलब जहाँ अपेरेंट है, आपको दिख रही है, डिफेक्ट दिख रही है, जैसे मेनिंगोसील है, माइलोमेनिंगोसील है या लाइपोमेनिंगोसील है, इस तरीके से। और दूसरा जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, बस आइडिया लगा रहे हैं आप कि अंदर स्पाइना जो स्पाइन है, जो स्पाइनटस प्रोसेसेस हैं वो जो हैं जुड़ी हुई नहीं है, बाइफिड है और उस कारण से वहाँ से कोई टिश्यू हर्निएट कर सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको बोलते हैं ओकल्टा, कि ओकल्ट है, छुपा हुआ है। तो उसके इंसिडेंस बहुत हाई दिखाया गए हैं कई स्टडीज़ में। और इसमें जो है क्या रहता है, मिड लाइन डिफेक्ट ऑफ वर्टिबल बॉडी रहता है। मिड लाइन जो जो बॉडी मेनली जो वर्टिबल आर्क्स हैं और स्पाइनटस प्रोसेस हैं वो जुड़ी नहीं होती हैं, फॉर्मेशन नहीं होती हैं। तो उनमें 10% ऑफ देम दैट स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में सो क्यूटेनियस मार्कर्स ओवर द लोकेशन ऑफ डिफेक्ट। जहाँ डिफेक्ट है वहीं पे क्यूटेनियस मार्कर्स, और क्यूटेनियस मार्कर्स में क्या रहता है, देयर में भी टफ हेयर और पिट और डर्मल साइनस, एंजियोमा, लंप भी हो सकता है जिसको हम जो एसोसिएट ना कर पाएँ स्पाइन मेनिंजेस से।
और लाइपोमा भी हो सकता है। तो ये जो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में कुछ एक चीज़ें हैं जो कुटेनियस मार्कर जिनको बोल सकते हैं हम। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक लाइपोमा जो है एसोसिएटेड है और वो अंदर तक गया है। देन एननसेफली सभी जानते हैं कि जिसमें हेड बना ही नहीं है या ब्रेन बना नहीं है। तो इट इज़ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एनटीडीज एंड मोस्ट कॉमनेस्ट एनटीडी इन इंडिया। जो हमने रेट की बात करी थी अराउंड 2.1 पर 1000 बर्थ्स में जो एननसेफली देखने को मिलती हैं। तो ये तो माइलोमेनिंजोसिल से भी कॉमन जो एनटीडी है। एंड इन दिस डिफेक्ट ऑफ नोटोकॉर्ड देयर इज़ फेलियर ऑफ फेलिक फोल्ड्स टू फ्यूज इन मिडलाइंस। फेलिक फोल्ड मिडलाइन में फ्यूज नहीं करते हैं which results in exposure of brain to amniotic fluid destroying developing forebrain neural cells। तो उसमें फोरब्रेन बेसिकली जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो इसमें बनते नहीं हैं। ब्रेन स्टेम सेरेबेलम स्पाइनल कॉर्ड में बी प्रेजेंट और पार्ट ऑफ डायनसेफलन में बी प्रिजर्व्ड। तो मे बी बेसल गैंग्लिया और थैलेमस बन जाए बट सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स इसमें नहीं बनेंगे या बनेंगे भी तो डिजनरेट हो चुके होते हैं बर्थ तक। द कंडीशन इज लीथल विद इन अ फ्यू आवर्स टू वीक्स एंड इज़ ईजिली डायग्नोज्ड एंटीनेटली अब अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोज कर सकते हैं और इसमें जो लीथल है डेथ होनी है। दैन लास्ट क्लिनिकल एंटिटी इज एंसेफ्लोसील। तो दो तरह से एंसेफ्लोसील हो सकती है कि न्यूरोपोर्स फेल्स टू क्लोज ड्यूरिंग 26 to 28 day of gestation while the herniation occurs at 3 to 4 months of the gestation। तो एंसेफ्लोसील कैन बी फ्रंटल जैसे फर्स्ट पिक्चर में लेफ्ट साइड में दिखाया गया और कैन बी ऑक्सीपिटल जैसे सेकंड पिक्चर में दिखाया गया बट दे आर रेयर। तो डायग्नोसिस ऑफ एंटीडीज़ अब तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हम डायग्नोस कर सकते हैं एंटीडीज़ और उसके डायग्नोसिस के लिए दो तरीके से हम जो एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं पोस्ट नेटल। तो एंटीनेटल में जो कॉमन है एक तो यूएसजी की इमेजेस भी लगी है नीचे। तो फिटल यूएसजी लेवल 2 यूएसजी जो हम करते हैं 16 to 19 वीक्स के अराउंड जो है तो उसमें हम इजीली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाया है कि एंसेफ्लोसील और एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं हम कि डिफेक्ट दिखाया गया है कि थोरैकोलम्बर रीजन में जो है माइलोमेनिंजोसील डेवलप कर रही है। देन कुछ मार्कर्स अल्ट्रासाउंड के अलावा भी हैं जिसमें कि मदर सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन स्क्रीनिंग एट 16 वीक्स 95% एनएनसेफली के केसेस में पॉजिटिव मिलती हैं और ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जो 80% ऑफ द केसेस में MSAFP जो है पॉजिटिव होता है। देन एमनियोटिक AFP के लिए हम जा सकते हैं और वो ओपन जो एंटिटीज़ हैं उनमें ही पॉजिटिव मिलता है। दैन सिर्फ जो है स्पेसिफिसिटी उतनी अच्छी नहीं है MSAFP की। तो एस्टाइल कोलिन एस्टरेज के लिए जो हम जा सकते हैं उसको एमनियोटिक फ्लूइड में उसका लेवल चेक किया जाता है और अगर एस्टाइल कोलिन एस्टरेज और अल्फा फिटोप्रोटीन दोनों बढ़े हुए हैं तो इट कैन गिव 90% 97% accurate result about NTDs। So we can easily diagnose NTDs before the 20 week of gestation and informed consent can be taken and then जो भी MTPs कराई जा सकती हैं। तो दो साइंस की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार MD के क्वेश्चंस में पूछा जाता है बनाना साइन या लेमन साइन। तो बनाना साइन जो है बनाना साइन फिटल स्कल का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें सेरेबेलम को जो है ब्रेन स्टेम के चारों तरफ फोल्ड हुआ देखते हैं और उसको जो है बनाना की तरह शेप देता है सेरेबेलम, तो उसको बनाना साइन बोलते हैं। देन एक लेमन साइन होता है जिसमें कि फ्रंटल वॉल्ट जो स्कल है वो लेमन की तरह शेप देती है, ये भी उसी में मिलता है जो चेरी मालफॉर्मेशन। तो दोनों जो साइंस हैं ये चेरी टाइप 2 जो हाइड्रोसेफेलस में भी हमने बात करी थी अर्नोल्ड चेरी। तो यूजली जब MMC और अर्नोल्ड चेरी सेकंड होती है तो बनाना साइन और लेमन साइन पॉजिटिव देखने को मिलते हैं।
देन पोस्ट नेटल डायग्नोसिस में कंजेनिटल एनॉमली तो सामने दिख ही रही है, बट उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए वी शुड हैव करेक्ट आइडिया ऑफ हिस्ट्री। देन एग्जामिनेशन जो एग्जामिन करें हम, जैसे कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में है, मास या ओपन है, विदाउट स्किन है तो माइलो मेनिंजोसील होगा। और एग्जामिनेशन अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल टिश्यू कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कितना है, किस पार्ट तक सेंसेशन नहीं है लोअर लिम्ब में, तो वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में हमने करनी है और उससे हम लेवल तय कर सकते हैं कि इस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है नर्वस टिश्यू का। देन इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना जो है नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है, कितना अफेक्टेड है बच्चा। तो उसमें एक्सरे स्पाइन या चेस्ट बेसिकली जो है एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए होता है। यूजली स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी, जबकि सीटी या एमआरआई बेसिकली स्पेसिफिकली हम जांच कराएंगे जब हम ऑपरेट करने जा रहे हैं उससे पहले, कितना एक्सटेंट ऑफ द मास क्या है, कितना क्या क्या उस मास के अंदर जो है टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई कराया जाता है। दैन यूएसजी कैन आल्सो बी डन इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जैसे मेनिंजोसील है, माइलो मेनिंजोसील है, तो उसके अंदर क्या क्या टिश्यूज़ हैं उसके लिए यूएसजी किया जा सकता है। हेड और एब्डोमेन का भी किया जा सकता है। कैरोटाइपिंग और साइटोजेनिक जेनेटिक एनालिसिस फॉर बेसिक जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन, और कोई सिंड्रोमिक बच्चा है तो उसके लिए। देन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड प्रिवेंशन दो तरह से कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में कि हम डिफेक्ट होने ही ना दें, और उसके लिए जो है पेरिकॉन्सेप्शनल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज़ द बेस्ट वे जो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है मॉडर्न साइंस में कि हम किस तरीके से एंटीडीज से बचा जा सकता है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि ऐसे बच्चे जो है दुनिया में ना आए जो एंटीडीज़ वाले हों, जिनको लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हों, तो उसके लिए जो एंटीनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यूएसजी होना चाहिए। हाई रिस्क मदर्स का 16 to 19 वीक्स के बीच में यूएसजी करें, लेवल 2 यूएसजी हो, या मदर की स्क्रीनिंग जो अभी बात करी हमने कि मदर सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन या एमनोटिक अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है का लेवल चेक हो, और अगर डिटेक्ट होती है एमटीपी तो एनटीडी तो एमटीपी करवाई जाए। देन मैनेजमेंट बहुत टफ रहेगा इसमें। इट विल बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। कोई एक स्पेशलिटी इसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। उसमें जो पीडियाट्रिशियन, न्यूरोटोलॉजिस्ट, हर लेवल के जो है चाहिए आपको। जो स्पाइनल सर्जन हैं या न्यूरो सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, ऑल। और लेटर ऑन जो जेंटो यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो ऑल विल बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ बेबी विद एमएमसी और अदर एंटिटीज़। तो जो सबसे पहले मैनेजमेंट है, पहले तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में पेरेंटल काउंसलिंग और एमटीपीज़ के लिए जो है उनको तैयार करना। अगर लगता है कि डिफेक्ट जो है बर्थ के बाद हैंडीकैप्स कॉज कर सकता है, देन नाउ देर आर ऑप्शंस ऑफ फीटल रिपेयर। देखा गया है कि अगर फीटस में ही ऑपरेट कर दिया जाए, एमएमसी को क्लोज कर दिया जाए, तो जो हाइड्रोसफेलस डेवलप करता है, आर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन जो डेवलप करती है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रीनेटल सर्जरीज फॉर एमएमसी जो दिखाया भी है पिक्चर में कि प्रीनेटली वो जो है यूट्रस को वो करके ओपन करके प्रीनेटल सर्जरीज की जा रही हैं, पैदा होने से पहले ही सर्जरी हो जा रही है डिफेक्ट की। देन इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ जो एनआईसीयू में अच्छे से रखना है उसको, नर्सरी में नहीं एनआईसीयू में रखना है बच्चे को। प्रोन पोजीशन में होना चाहिए क्योंकि स्पाइन लेटाएंगे तो सैक रप्चर के कारण सीएसएफ लीक और डेथ हो सकती है। देन केयर ऑफ लीजन बाय कवरिंग, और कवरिंग विद गॉज सोक्ड इन नॉर्मल लाइन जो है उसमें सो करके हम कवर कर सकते हैं अनटिल सर्जरी होने के। सर्जरी तक उस जो सैक की हमको जो है एसेप्टिक केयर करनी है और मॉइस्ट रखना है उसको।
देन सर्जरी ही उसका अल्टीमेट इलाज है, तो सर्जरी शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग। और सर्जरी में जो है रिपेयर एंड क्लोजर दोनों की जाती हैं। और लेटर ऑन सर्जरीज फॉर कोमॉर्बिडिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस भी, जैसे कोमॉर्बिडिटी कोई और है, सीटीबी की है या कुछ भी है, या हाइड्रोसफेलस है, लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस होती है, हाइड्रोसफेलस वगैरह डेवलप करता है तो उसकी सर्जरीज करनी होती है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ऐसा एनेंसेफली में तो कोई प्रोग्नोसिस है ही नहीं, हो तो डेथ होना ही है बेबी का, अगर एनेंसेफली के साथ बच्चा पैदा हुआ है। Then untreated MMC, they have very high mortality with in first few years। अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया तो ट्रीटमेंट के बावजूद भी they have very high mortality। हाइड्रोसफेलस डेवलप इन 80 to 90% ऑफ MMC। जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं उसके कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में जो हाइड्रोसफेलस डेवलप कर जाता है, तो हाइड्रोसफेलस एक रहता ही है कॉम्प्लिकेशन में। Then intelligence, 70% of the baby may have normal intelligence। They are more prone to meningitis, learning disabilities, and seizures। There are high risk of lower limb weakness, tethered cord, or orthopedic problems। Urinary incontinence in 25% of chances, and bowel incontinence in 14% of babies। और द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ रिमेंस रेनल फेलियर, की जो है जेंटोयूनरी ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, ब्लैडर की ट्रीटमेंट या न्यूरोजेनिक ब्लैडर की ट्रीटमेंट से नहीं हुआ, हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप किया, सीकेडी हुआ और बच्चा जो है रीनल फेलियर में चला गया, और जिसके कारण जो उसकी अल्टीमेटली उसकी कारण उसकी डेथ हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटिडीज neural tube defects। So thank you, can send me queries on my WhatsApp number। Thank you all।